Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Scorpion Ascendant and the predictions for the month of April 2023. For Scorpion Ascendant, the Ascendant Lord Mars is going to transition through the 8th house, and although the 8th house is considered a house of pain, in this case the interesting part that is happening is that both Mercury and Mars are exchanging signs. So Mars is going to be in the sign of Mercury and Mercury is going to be in the sign of Mars. 6th and the 8th house lord are exchanging their places. What it means is that in the month of April, your enemies will attack you, but you will be able to hold on to your position and we will be able to defeat them. Scorpion ascendant people deal with a lot of enemies, disease, fighting, politics on a daily basis. You are also very blunt speakers, and that is why people avoid talking to you directly or they don't like you. You also love your progeny immensely. Amongst all the 12 signs, it is the Scorpion ascendant people who love their kids and they are even ready to die for them. Scorpion people also do not like when other people interfere in their lives, and they are also extremely attracted towards their partner because the sign of Venus falls in the second house, and Venus itself indicates attraction, and that is why Mars Venus are called natural partners in astrology language. For you, Mars is also the sixth house lord, and the sixth house also indicates service. So all those people who are in jobs, the end of the month from 28th to 30th of April is the best time to shine in the job sphere. You are also someone who is more interested in astrology compared to other signs because the sign of Scorpion itself indicates mystery, occult, and an attraction towards what is hidden. So that is why a lot of people who are Scorpion ascendant are attracted towards astrology. The other people also find it very difficult to live with the Scorpion ascendant people because of their aggressive and straightforward nature. Only Pisces, Taurus, and Virgo ascendant people can stay with Scorpion ascendant. Taking a look at other planets one by one, Saturn will continue to aspect your 10th house, and this Saturn will now start to increase your workload in its next 2.5 years. So, a lot of people of Scorpion ascendant will feel that they should leave their jobs and do something else. My suggestion will be to stick to your current jobs at the moment. After 22nd April, Jupiter will enter into the sixth house, and all those people who are in service or jobs, this Jupiter will start to create new opportunities for you. But till that time, they should continue to be in their current jobs. You will get an opportunity to shift to a new job after Jupiter firmly places itself in the sixth house, which will be in the later half of the year. Venus is going to be in your seventh house from 6th of April to 1st of May. And this is a very good time for you to spend with your spouse. Your spouse will also see a life of luxury during this time frame. If you are a Scorpion ascendant people, you will buy some luxury product for your spouse, or if you happen to be spouse of a person who is a Scorpion ascendant, then they will buy something luxurious for you. As I mentioned earlier, Jupiter is the lord of second and the fifth house and will remain in the fifth house till 21st of April, and then it will move to the sixth house. So students will see a very good time in this month, especially the time frame from 16th to 21st of April will be extremely good for appearing in any kind of a competitive exam. People who are interested in speculation, they will also excel in the time frame of 16 to 21st April. This also happens to be a good time to spend with your children, and you will also end up spending some money on your kids in the month of April. If you look overall, this is a very good time for the Scorpion ascendant people because Saturn is in its own sign. Jupiter is also in its own sign for most part of the month, and then it will move to its favorable sign. Sun is in an exalted position in the sixth house. Overall, three planets are in the sixth house, and as a result, the house of competition is becoming extremely strong. And that is also a reason why your enemies will not stand a chance in front of you in the month of April. And further, Venus is in its own sign in the seventh house, so you can spend a lot of good time with your spouse. And the exchange of the sixth and the eighth house lord are also working in your favor. The only days where you need to remain cautious in the month of April is the time frame from 22nd to 27th of April. Just avoid
taking any key decisions during this time frame and take care of your health. But overall, if you look at the planetary configuration, this month is going to work extremely well in your favor. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो लग्नेश मंगल हैं वो आपके अष्टम भाव से भ्रमण करेंगे अप्रैल के महीने में। अब नॉर्मली जब भी लग्नेश अष्टम भाव से निकलते हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं कहलाती, क्योंकि अष्टम भाव आपके लिए पीड़ा और समस्याओं का स्थान है। लेकिन यहाँ जो एक अच्छी बात हो रही है कि छठवें और आठवें भाव के स्वामियों का आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मंगल बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है साइंस का, इसकी वजह से अप्रैल के महीने में आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। देखिए, आपके लग्न के लिए लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह बनता है, तो वृश्चिक लग्न के लोगों के साथ झगड़ा, शत्रु, बीमारियां और कोर्ट कचहरी के मुकदमे, ये सब उनके साथ साथ चलते हैं जिंदगी भर। व्यक्ति इनमें से जिसको भी परसू करता है वो चीजें इसके पीछे लग जाती हैं। तो यहाँ पे आपको इस समय में शत्रुओं पे अपने विजय पाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आपके शत्रु आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे, लेकिन ये जो एक्सचेंज हो रहा है प्लैनेट्स का, और इसके अलावा यहाँ पर तीन तीन ग्रह मौजूद हैं, उसकी वजह से आपका छठवां भाव बहुत शक्तिशाली हो जाता है अप्रैल में। और जितने भी लोग आपके शत्रु हैं उनको आप अप्रैल के महीने में धूल चटा देंगे। देखिए, आपके जो लग्न के लोग होते हैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, बहुत ब्लंट बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका बोला हुआ कई बार लोगों को चुभ जाता है। जितने भी वृश्चिक लग्न के लोग हैं वो उनको अपनी संतति से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। सारे 12 लग्नों में सबसे ज़्यादा जो अपने संतान को प्रेम करता है वो वृश्चिक लग्न का व्यक्ति होता है, और ये अपनी संतान के लिए मर भी सकते हैं, इस हद तक ये उनके साथ अटैच रहते हैं। और ये अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र की राशि पड़ती है और शुक्र ही अट्रैक्शन का कारक होता है, ऑपोजिट जेंडर को दिखाता है। तो इसीलिए वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन जीवन भर बना रहता है, ये उनको छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में। और इसीलिए हम शुक्र और मंगल को नैसर्गिक पार्टनर्स भी बोलते हैं, नेचुरल पार्टनर्स। आपके लग्न के लिए मंगल छठवें भाव के भी स्वामी बनते हैं। छठवें भाव से आप सर्विस भी देखते हैं। तो जितने भी लोग जॉब्स या सर्विस में हैं उनके लिए इस महीने के आखिरी का समय बहुत अच्छा है। 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा रहेगा जॉब में अच्छा करने के लिए। आपके लगने के लोगों का ज्योतिष में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो अष्टम जो राशि होती है वही छुपी हुई चीजें दिखाती है। तो इन आपके लग्न के लोगों का एक नैसर्गिक कल रहता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या कोई भी ऑकल्ट साइंस कह लीजिए उसकी तरफ। वृश्चिक लग्न के लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है बाकी साइंस के मुकाबले में। अभी एक नज़र बाकी ग्रहों पर भी डालते हैं। शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और ये अपनी सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, और आपके कार्यस्थल पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाता जाएगा अगले 2.5 साल में। तो इस समय में काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि उनको अपनी नौकरी में प्रेशर वो झेल नहीं पा रहे हैं और उनको दूसरी नौकरी में स्विच कर लेना चाहिए। तो अप्रैल का महीना उसके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर अपने आप को थोड़ा समय देते हैं तो अप्रैल में आखिरी में यानी 22 अप्रैल को गुरु छठवें भाव में भ्रमण करते हुए आ जाएंगे, जो कि उनकी फेवरेबल ही सूर्य की राशि है। तो यहाँ पे बैठ के गुरु आपके 10वें भाव को एक्टिवेट करेगा 5वीं दृष्टि से, और सेकेंड हाउस को भी एक्टिवेट करेगा जो कि धन का स्थान है। तो एक बार गुरु का जब यहाँ पर मूवमेंट हो जाता है तो सही समय पे आप नया जॉब स्विच कर पाएंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में तो इसी जॉब में आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु का आपको सपोर्ट ना मिले तब तक आपको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। शुक्र आपके सप्तम भाव में आ चुका है। 6 अप्रैल से लेके 1 मई तक शुक्र सप्तम भाव में बैठा रहेगा। तो सप्तमेश का सप्तम में बैठना बहुत अच्छी पोजीशन कहलाती है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको इस समय आपके बिजनेस पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी पति पत्नी के साथ भी इस समय को काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र लग्जरी का भी कारक है। तो अगर आप स्वयं वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो आप अपने स्पाउस के लिए कुछ लग्जरी वाली चीज़ खरीदेंगे, या फिर अगर आपका स्पाउस वृश्चिक लग्न का है तो वो आपके लिए कोई बढ़िया लग्जरी की चीज़ खरीद के लाएगा इस महीने में। कुल मिला के ये वाला समय अपने पार्टनर के साथ बिताने के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने पहले बताया था, गुरु
यह छठवें भाव में मूव करेंगे 22 अप्रैल को, और गुरु आपके लिए द्वितीयेश और पंचमेश दोनों बनता है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और जो सबसे अच्छी दिन है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो 16 से 21 अप्रैल तक का समय आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट में भी खेलते हैं और आपका स्पेक्यूलेशन में इंटरेस्ट है तो भी इस महीने में आपके लिए गेन बनाने की काफ़ी संभावना है। और 16 से 21 अप्रैल तक का समय आपके लिए स्पेक्यूलेटिव मार्केट की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। ये ऐसा भी समय है जब आपको अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। अगर आप कुल मिला के देखिए तो इस समय सितारे आपको बहुत फेवर कर रहे हैं। शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का छठवें भाव में बैठा हुआ है, शुक्र अपने भाव में बैठा हुआ है, और गुरु भी अपने भाव में बैठा हुआ है 22 अप्रैल तक, और उसके बाद अपनी मित्र राशि में चला जाएगा। और छठवें और आठवें भाव के मालिकों का भी आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो सितारे बहुत ही मजबूत हैं और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत मज़ेदार निकलेगा। खाली जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो एक हफ्ता है, 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का। इस समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चूंकि सितारे ही इतनी मजबूत स्थिति में आपकी कुंडली में, कि ये महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा निकलेगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।